अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। क्रिकेट क्लिनिक के साथ आसिफ अहमद, मुदस्सिर मिर्जा, साइम कश्मीरी एक मरतबा फिर हाजिर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी नो, इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप फॉर अस। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इस एपिसोड में व्हाट वी गोना डू इज वी गोना रिव्यू द गेम्स एंड विद द लेंस ऑफ रेटिंग द प्लेयर्स। जो हमारे 15 का स्क्वाड था उसके अंदर हम तीनों, and we haven't discussed this, so for us it's going to be new as well, learning what each of us has rated these players. So और उसके अंदर ही रेटिंग्स के बाद हमारी डिस्कशंस निकलेंगी कि क्या प्लेयर्स हमारी क्या तवक्कुआत थी और वो पूरी हुई कि नहीं हुई। सो स्टार्ट करते हैं। आसिफ, क्या ख्याल है, पहले हम क्या ओवरऑल इज देयर एनी पर्टिकुलर ऑर्डर यू गाइस वांट टू गो, या शुड आई जस्ट टेक आउट नेम्स एंड You can pull out the 15, I think, and do it. I Yeah. think the important thing, and everyone is different, but जो आपने कहा कि तवक्कुआत के मुताबिक, that's how I did my ratings, you know. So that there's some context for it. But yeah, I think let's pull out the squad of 15 and just go. अच्छा चलें, मेरे पास जिस जिस तरह ऑर्डर में आ रहे हैं नाम। लेट्स स्टार्ट विद साहिबजादा फरहान। ओके, यू गाइस वांना गो फर्स्ट? इस तरह करते हैं कि एक प्लेयर का आसिफ पहले कर ले, एंड देन मुदस्सिर, एंड देन थर्ड वन, इस तरह। सो वी विल टेक राउंड, सो इन दिस विल गो इन अ क्लॉकवाइज मैनर और समथिंग। सो पहले But के all लिए three of आसिफ। us should, but all three of us should give ratings to या each या player, या right? या या Okay. या बट यू कैन गो फर्स्ट। इसमें Uh, आपने आपने क्या दिया इसमें? yeah, this is okay. So yeah, this is the controversial. It's not controversial. Look, Saeed Farhan was the highest scorer in the World Cup. He आप पहले played. रेटिंग्स देना, फिर आप No, 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 no. But I जस्टिफिकेशन। have to qualify it first, right? अच्छा। Um, okay, so all right, Cholo, I'll give my rating is a 9 out of 10. The अच्छा, only मेरा reason नहीं। the only reason I did not give him a 10, but because look, he was the highest scorer in the entire World Cup, right? Um, there are a few things, and you don't want to दो nitpick, but सेंचुरीज भी हैं उसकी, है ना? those चलो। centuries behind. There are a few things that I still think he can be better at, and a few things that stick out, which is why I did not give him a 10. I've only he deserved a 10 probably. Um, एक चीज ये है कि okay, 0 against India, that's fine. Given all his other scores, he did great. Otherwise, he still has a 42% dot ball percentage, and his rotational strike is still very weak. So it's all or nothing. Recent match में, in fact, in Sri Lanka match में, I think he had one over just में पहले दो balls छक्के चौके and then 4 dot balls. So I think that's something he needs to improve upon. The other thing is, if you look at his record, actually against the Sina and India teams, compared to the weaker competition, against the top five, South Africa, England, New Zealand, Australia, and India, right? In T20s, in 18 innings, that's a good sample size. He has 376 runs, so average of 20. हाँ, Um, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा था, वैसे इंग्लैंड के खिलाफ ही वाज uh, डिसेंट, बट but इंडिया के खिलाफ यार जी। overall, taking all those five teams combined, his strike rate is 115. And you look at all the other countries, he has an average of 34, 929 runs, strike rate of 147. So, and look, to be fair, I think if you look at all of our players, it may be like that, but I think he is still a little suspect against the top competition. I only say this because he has raised the bar for measuring himself. He's done so well. So, I mean, look, he was the best batsman for us this entire tournament with the most consistency. 9 seems a little harsh, but I think only because I think he can be a 10 out of 10, and hopefully, inshallah, he will be down the road. ओके, मुदस्सिर आप कर लें, उसके बाद में मैं मैं अपने देता हूँ, आप हाँ नहीं, बताएं। मैं तो उसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि अगर एक थोड़ी सी सपोर्ट मिलती इसको तो पाकिस्तान कुड हैव क्वालिफाइड वेरी इजीली टू द सेमीज। बल्कि मेरे ख्याल से इसके अलावा तो किसी ने बैटिंग में तो किसी ने कुछ किया ही नहीं है सिवाय फखर की एक इनिंग के, ऑफ कोर्स। तो ठीक आई है। विल गिव 10 आउट No ऑफ innings. 10। अच्छा, मैं आई ऑल्सो हैड 9 फॉर हिम, और मैंने जो एक नंबर काटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट एक है रीजन, और वो ये है कि जब वो सेंचुरी उसने किया दोनों के अंदर, यू This नो, is my third point also. Go on. the Yes. way he was celebrating made me believe that यार उसके लिए personal milestones are important. And yes, personal milestones are important, but especially जो last game थी उसके अंदर हर बॉल was important, right? And it was clear Yes. जब वो 90s में पहुंचा है, he was trying to get 100, वो singles ले रहा था, and अगर वही चौके छक्के मार देता उस वक्त, who knows कि हमारे वो 213 की जगह 230 235 हो जाता, which might have been a winning score. सो वो जिस तरीके से उन्हें सेलिब्रेट किया, स्पेशली वो जो उसके कलैप्स हो रही थी उसके अराउंड, वो मुझे लगा कि यार ये माइंडसेट जो है ना बंदे का, अभी वो एक चैंपियन माइंडसेट नहीं हुआ अभी बंदे का। वो So I उसका want to. फॉल्ट नहीं है, वो सिस्टम ने उसको साथ जो हुआ है ना। आई डोंट नो हाउ ही इज इन द टीम।
उसका डेब्यू बाबर के साथ हुआ था 2017 में. ही इज बीन टॉप स्कोरर फॉर 5-6 years. पीएसएल में कराची किंग्स में उसको बेंच करते रहे. पीएसएल में बल्कि आखिरी में जो उसका ब्रेक थ्रू पीएसएल है उसमें भी वो था नहीं. वो तो कोई प्लेयर कोई नहीं आ पा रहा था तो ही गॉट एडेड लास्ट मिनट. He was the highest scorer in PSL. I think you guys are right. I think from now on, the team culture थोड़ा बेहतर भी हो रहा है कि they need to get out this personal milestones. But जो उसके साथ हुआ है considering तो मैं तो उसको 10 out of 10 ही दूंगा इस system में. So I will just add to that because Ikto, number one, in both of those centuries, he slowed down incredibly right before the century. You know, took a few singles, and then when he got out against Abhi Akhri match with Sri Lanka, he was celebrating like crazy because he got his milestone. Not, you know, when the team was clearly falling short. Ek cheese which I read, which I didn't pick up, and I want to look back and see, is at a certain point when he was batting with Fakhr, he crossed Virat Kohli's highest run tally in a World Cup, 306 runs. In one when World he Cup, did that, और in one World Cup. और एक गेम तो वॉश आउट हो गई थी वैसे भी, आप वो देखो ना Right. So when that happened, again, he went and he high-fived Fakhr Zaman. Again, I understand it's fine, but you know, at this point, you're the highest scorer in the World Cup. Your place is secure. So you must be thinking team 1, 2, 3, 4, and then myself fifth. Yeah. So that is something which I agree with. You know, I mean, Mudassir and की बात again, सही है, but Mudassir yeah. का पॉइंट सही है कि पार्ट ऑफ दैट इज द कल्चर. अनफॉर्चुनेटली वो इतना इनसिक्योर किया गया है कि बट यू नो इन फ्यूचर वी वुड वांट कि यार टीम के लिए आप खेलो, टीम अपने लिए ना खेलो. और टीम के लिए खेलोगे आपके आएंगे भी साथ स्कोर ही ना. एंड सो वो चीज है. चलिए सेकंड, अगर T20 में देखो जो फखर is the only one person in the entire team for last, like जब से वो शुरू हुआ है वो खेलते हैं टीम के लिए. 40 out of 80 जो उसने किए, he never cared about his 100. और in a big scheme of thing 80, 100, अगर आप स्लो हो रहे हो you are doing more damage. So फखर तो बेचारा कर ही रहा था कब से, वही एक ही बंदा जो he never cared about the stats. अच्छा चलें ठीक है, इस पे होगी डिस्कशन. नेक्स्ट आ जाते हैं साइम अयूब पे. मुदस्सिर यू गो फर्स्ट, साइम सेकंड एंड आसिफ कैन गो थर्ड. यार उसकी बॉलिंग की वजह से maybe I will give him 6 because of the bowling. अगर बैटिंग के से तो बैटिंग में तो he was a big flop, मगर all round performance I think he, even in last game he deserved to be in the team in my opinion, playing 11. So yeah, 6 for me. मेरा भी 6 ही था. मेरा वो था कि मेनली उसकी कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में थी. उसकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट थी जिसमें उसने 3 विकेट्स ली थी. और इनफैक्ट अगर वो पाकिस्तान चेज कर लेता तो हो सकता है मैन ऑफ द मैच ही बन जाता. बट अगेन उसकी प्राइमरी रोल उसका बैटिंग है एंड अनफॉर्चुनेटली बैटिंग में बिल्कुल ही क्लिक नहीं किया. हो सकता है आखिरी गेम में उसको चांस दे देते वो कर जाता. बट या आई हैव 6 फॉर हिम. एंड जब उसको रिप्लेस किया है तो इट वाज क्लियर दैट यू नो that we were missing Fakhr, right? So no, I think we missed him more in bowling के कोई तीसरा स्पिनर नहीं था कोई. हाँ, स्पिनर में उन्होंने किया, लेकिन उससे ये भी हुआ कि यार उसको जो आप ट्राई किए जा रहे हो ओपनिंग के रोल में, अगर आप शुरू से फखर को ट्राई करते तो हो सकता है कि हमारे ज्यादा बेहतर होता. इट्स नॉट अ बिग डील. ज़ल्मी में वो वन डाउन बहुत खेला हुआ है. सही. आसिफ आप बताएं. I have given him a 4. Mera ye, again, we needed more from the batting. There's no question about it. But, you know, to be fair, he scored 24 against Netherlands, 19 against USA, 14 against Namibia. He did not waste balls. So when he gets out, he would not, you know, consume deliveries like some other people were going to talk about. Bowling was very important, obviously. Aside from the 3 wickets against India, he took 2 wickets against Namibia. He didn't take any other wickets. He was economical, but the only reason he's not like 1 or 2 is because of his bowling. अच्छा, अब तीसरा मैं कर लेता हूँ. सो इसी ऑर्डर में चलते हैं. सलमान अली आगा. आई एम डबल माइंडेड बिटवीन अ 4 and a 3, so I'll probably give him a 3.5. जो उसकी वैल्यू मुझे नजर आई है वो एक उसकी गेम जो उसने बॉलिंग कराई थी अगेंस्ट इंडिया, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर मी. प्लस उसके नमीबिया के अगेंस्ट उसने एक डिसेंट नॉक खेल दिया था एट अ फास्ट. बट उसके अलावा बैटिंग वाज अ कंप्लीट फ्लॉप. देयर वर क्वेश्चन मार्क्स अबाउट हिज कैप्टनसी. तो आई हैव 3.5 फॉर हिम. 3.5 कर लो, 4 कर लो. इफ आई एम बीइंग लीनियंट आई विल गिव 4. आसिफ आप बताएं. I did a 2. And again, the batting, you know, it was a good idea to put himself at number 3. It did not materialize. I think the one good decision he made as captain, possibly the only really good decision he made, was bowling against India. But usme bhi
you look, he bowled 2 overs and got 1 for 10. Why didn't he continue? In the match against England, Usman thought it got a wicket. He took him off. These are things which the record, the body of evidence now in all big matches, it's piling up again and again and again. Look, I've backed him when we were winning, and we had this combination with the World Cup was coming. I think, how much chance do you give this guy if he's not bowling himself and he's not batting, and his captaincy is suspect? I'd say a 2, which is generous and probably needs to leave the team. Beshak make him a big feature in ODIs and tests, but I think his T20 career is seriously in jeopardy. मुझे लग रहा है वो एक स्केल का इशू है, कुछ जजेस नहीं होते, जरा स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी ग्रेडिंग में, कुछ लीनियंट होते हैं तो आई थिंक आसिफ का स्केल ही ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है. I was surprised you gave him a 3.5. Yeah. चलो नहीं, anyway. मैंने अपने शादाब के लिए भी तो रखना है ना थोड़ा सा, इसलिए अगर इसलिए मैं सबको दे रहा हूँ ताकि उस बेचारे को भी कुछ मिल जाए. अच्छा मुदस्सिर, आपके कितने नंबर हैं? मैं तो -1 दूंगा. -1 इसलिए क्योंकि बाबर का मजाक उड़ाते थे, इतनी गंदी कैप्टनसी, अल्लाह माफ करे यार. एंड दिस इज सपोज्ड टू बी हिज टाइम टू शाइन. अजीब, मतलब आप वीडियो लंबी हो जाएगी. आई थिंक ही शुड बी किक्ड आउट और ही शुड नेवर प्ले अगेन इन T20. आई मीन इन हाइंडसाइट ये तो हम पहले भी कह रहे थे कि उसका कैप्टन बनना भी वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क. ठीक है, वो बहस हो गई ना, मगर इतना खेलने के बाद देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट के बजाय इट वाज अ डिजास्टर. कि लग रहा था कि कैप्टनसी ना पर्ची पे हो रही है, मतलब बच्चों वाले ब्लंडर्स हो रहे थे. अब वो बोर नहीं करना मुझे, मतलब आई एम जस्ट सेइंग शी इज माइनस में इसलिए दे रहा हूँ कि ऑन अ बर्डन ऑन द टीम. मुझे तो लगता है कि अभी जब हम खत्म करेंगे, हम खेले आधी टीम से, हमारी आधी टीम थी ही नहीं इस वर्ल्ड कप. अच्छा, जो कैप्टनसी के जो ब्लंडर्स जो हुए हैं वो मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन हाउ मच डू यू थिंक ही वाज एट फॉल्ट एंड हाउ मच डू यू बेसिकली ब्लेम हैसन, लाइक फॉर एग्जांपल टॉस जीत के इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करवाना? देखो, क्रिकेट में ना जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन होते हैं ना, दे शुड बी एबल टू ओवररूल कोच. और बहुत मैसिव ब्लंडर किए हैं आगा ने. जो सबसे सिंपल वाला था, जो इंडिया मैच में 1 ओवर तो बनता था एक और उसका. उसके अलावा बाबर को खिलाए जा रहे हो. आपके लिए आखिरी मैच में आपकी प्लेइंग 11 थोड़ी बेहतर की है. You keep doing the same mistakes again and again, और अजीब, it was a circus. तो I think I'm really disappointed. -1 यार. अच्छा चलें, फोर्थ जो है प्लेयर बाबर आजम. आसिफ, आपकी टर्न है. Okay, I gave Babar a 0. Okay. I will say, looking at his, TK, he had one good innings. That was against the USA. That was one good over. He had one good over in the entire World Cup. It's not just that he didn't score runs, it's that he consumed deliveries time and time again. About, if you want to listen to all the Pakistani experts, whether it's Omar Gul or Muhammad Hafiz or Shoaib Akhtar or Salman Buttface, all that they say is jo hai usko opening mein dalo. Yeah, Hassan ne kaha hai already, as an opener, he has a strike rate of less than 100. 12 over ke baad you can usko khilane sakte. So you want him there for just a few overs. The one match when we were collapsing and he could have stayed and taken as much time as he wanted was against India, and he threw it away. And so the question is, this is our premier batsman. How many times can we sit there and wait for him to win a match for us? In the last 10 years in ICC tournaments, I remember 2 matches. 2019 ODI Cup against New Zealand, he scored a century, and then 154 for no loss. That's it. And look, you have Root, you have Kohli, you have Williamson. They've all stopped playing T20 cricket. Iske kya majal hai ki they keep putting him forward. Enough is enough. Babar can still leave with dignity and grace, whatever's left of it, and say, I'm going to quit this format. I'm going to play Test cricket and ODIs, and I'm fine with that. But he was actually, if you go by Mudassir's ranking, saying a burden, he was a huge burden on the team. I would do -10, but 0 is the lowest I went. So, मुदस्सिर, आप कहें, उसके बाद फिर मैं दे देता हूँ. वैसे तो -1 ही बनना चाहिए था, मगर यूएस चलो गेम में खेले 0 मेरी तरफ से. देखो, मैं तो इस डिबेट में आई डिसएग्री विद स्ट्राइक रेट डिबेट. जो प्राइम बाबर था उसने बहुत T20 में रन किए हैं, 202 दफा चेस किए हैं. हिज स्ट्राइक रेट वाज 139, एवरेज ऑफ 50 एट हिज पीक. सो द गाय कैन प्ले. मसला ये कि ही इज नॉट स्कोरिंग इन एनी फॉर्मेट. आप T20 छोड़ो, टेस्ट में कहां से रन, टेस्ट में भी रन नहीं कर रहा है भाई वो. तो बेस्ड ऑन फॉर्म उसकी जगह नहीं बनती थी. अगर बाबर फॉर्म में आता, जैसे स्टीव स्मिथ 4 साल बाद फॉर्म में आए, ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को T20 से 2 साल पहले निकाल दिया, तो उससे रन नहीं हो रहे थे. तो अगर बाय मिरेकल बाबर कम्स बैक, ही कैन, आई डोंट नो, ही माइट कम बैक, बट इस वर्ल्ड कप में
he should not even be a part of 15. तो बाबर से ज्यादा कसूरवार जो है ना, अगेन वो -1 सलमान को इसलिए दिया है, आपने एक बाबर को, एक तो आपने टीम में लेके गए उसको, और उस बेचारे को नंबर 4 पे खिला रहे हो, मतलब इट वाज कंप्लीट ना ब्लंडर, मिसमैनेजमेंट। तो इसलिए मैं 0 दे रहा हूँ, वरना -1 देता अगर ये फ्लॉप हुआ होता सही तो। ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उसको एक्चुअली आधा आधा नंबर दिया है। और आधा नंबर मैंने क्यों दिया है, जो उसने कैच पकड़ा था नेदरलैंड के अगेंस्ट, दैट टू मी वाज द हाईलाइट ऑफ, तो वो आधा नंबर उसका बनता है, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव कैचेस दैट आई सीन। आई थिंक उसकी कंट्रीब्यूशन फील्डिंग में ही थी, बैटिंग में तो आई एग्री कि उसका रोल ही कोई नहीं था। हैसन ने खुद कहा है कि यार उसका रोल बनता है आपका ओवर्स नंबर 7 to 12 के अंदर, अगर टीम कोलैप्स कर जाए, और उसके अंदर भी उसने जब एक मौका मिला इंडिया के अगेंस्ट यार, वो भी नहीं कर सका। एंड हमें तो डर था कि यार आखिरी गेम में ना खिला दें उसको, which would have been a big blunder because we would have needed to chase in 13 overs या put on a big score। तो आधा नंबर मेरी तरफ से उसका आ गया। नेक्स्ट प्लेयर कौन है जी? लास्ट आपने किया था ना, मुदस्सिर मैंने आप। किया था। नेक्स्ट प्लेयर आता है जी शादाब खान। मुदस्सिर। शादाब, जीरो, आई विल गिव हिम 0। उसका शादाब का फॉल्ट नहीं है। शादाब पे मेरा था कि जैसे उसको टीम में डाला था ना, उसको टीम में जरूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ही हम लोग यही बोल रहे थे कि although historically शादाब used to be a big match player till 2022 वर्ल्ड कप। 22 मुझे याद है, बल्कि 22 के जो वर्ल्ड कप था उससे पहले हम कहते थे इसको निकालो, somehow he used to play better in ICC tournaments। मगर अभी यार उसकी जब इंजर्ड हुआ है तो वो आई डोंट बाय इन दैट थियरी कि यार इंजर्ड हुआ इसलिए ही हैज टू कम बैक, क्योंकि जब वो इंजर्ड हुआ तो उस वक्त भी टीम का ही वाज नॉट अ रेगुलर। तो शादाब से मुझे, शादाब एंड बाबर शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम, तो इसलिए मैं 0 दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता शादाब को था क्यों स्क्वाड, क्योंकि नवाज वाज इन अ फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और नवाज फ्लॉप हुआ है वो अलग बात है, मगर जब शादाब होता है नवाज वैसे भी नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि वो की मोमेंट्स में शादाब ऊपर आ जाता है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो मुझे लगता है एक तो दोनों को खिलाना भी ठीक नहीं था। आई थिंक नवाज शुड हैव प्लेड इंस्टेड ऑफ शादाब। नवाज तो खेला ही था। अच्छा चले, मैं अपने देता हूँ। मैंने नो, उसको आई मीन बाय हिमसेल्फ, दोनों को नहीं खिलाना चाहिए। वो टीम पे मतलब 0 हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ टीम को। Okay, so I have given him 4, and I'll try to justify. And again, I am being lenient to everybody, so इसका भी leniency बनती है. So if you look at the stats, our highest run scorer in the entire tournament was Farhan by a long shot. He made 383 runs. और number 2 पे आपका शादाब खान है, right? And which means basically, and he was coming after Babar Azam. He was coming after Salman Ali Agha. So at least from a batting perspective, he did better than Agha and Babar. और उनको अगर मैं आधा नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर दे रहा हूँ, और आगा को तो मैंने 3 नंबर दे दिया, तो उससे एटलीस्ट बैटिंग में आई फेल्ट ही डिड स्लाइटली बेटर। शादाब का अगेंस्ट यूएसए ही मेड a rapid 30, he took 2 wickets, so यूएसए में एक्चुअली ही वाज द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जो आप क्रिकेट इन्फो की जो रेटिंग्स देखते हो। नमीबिया के अंदर ही स्कोर्ड क्विक रन्स। यस, जो बिग टेस्ट थे अगेंस्ट द बिगर टीम्स, अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट श्रीलंका, he failed. Bowling ke andar he didn't perform, especially against the bigger team. So overall a disappointment. But I think at least from a batting perspective, he was not as bad as some of the other, specialist batsmen in the squad. So I have 4. Asif, aap bataएं. While listening to Mudassir, I amended my score. So I was a 3, but I've made it a 2 now. देखो, जो आप बात कह रहे हो, it's true, but you look against USA, 30 and 12 balls, took 2 for 26. Against Namibia, 36 and 22 balls, took 3 for 19. That's great, Oh, okay. But Khair, anyways, you look at what he did in the big teams, against the big teams, England ke khilaf, 23 and 11. Sri Lanka ke khilaf, he failed. India ke khilaf, he failed. The biggest thing is his bowling is so bad, he is almost unplayable. So against the test playing teams, that is Sri Lanka, India, and England, he bowled 6 overs, 0 wickets for 81 runs. 81 runs. You can do the calculations on your own. He single-handedly dragged us down in those. Now, again, the question then comes, and I think has to be asked, if his bowling is such a huge liability, is he good enough as a batsman to put in the team just as a batsman? I don't know. That's something we'll talk about down the road. Yeah. I still gave him, because he had those performances,
you can't deny those performances. But this is what he does: is he performs well against lower opposition when it really counts. He doesn't. So I gave him 2 for that. But I could spend an hour talking about his bowling, and it would not be nice. So I'll just stop. नहीं, It's वो one हम thought. और उसको डिस्कस कर सकते हैं, बट वी कैन मूव। मेरा पॉइंट ये भी था कि आप ये देखो कि जो आपका आगा सलमान है, he also initially was supposed to be an all-rounder, right? Yeah. But after becoming a captain, he has solely become a batsman, और बैटिंग के अंदर उसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। इसके अंदर शादाब का आई सी एम मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो मेरे लिए अगर वो खाली बैटिंग ही कर लेता और अगर बॉलिंग ना भी करवाते और एक स्पेशलिस्ट बॉलर को और ऐड कर देते, तो मे बी हिज परफॉर्मेंस वुडंट हैव लुक्ड एज बैड। हमें इसलिए बुरी लग रही है कि उससे ओवर करवाया गया और उसमें उसने परफॉर्म नहीं अच्छा किया। तो सो विच इज फेयर, ही डिजर्व्स क्रिटिसिज्म। लेकिन अगर आप इनमें से एक ऑलराउंडर रख लो और बाकी आप Yeah. स्पेशलिस्ट खिला लो और उस ऑलराउंडर को आप प्राइमरली बैटिंग के लिए इस्तेमाल करो, तो बैटिंग के अंदर आई डेंट फील दैट ही वाज एज बैड एज सम ऑफ द अदर स्पेशलिस्ट बैट्समैन। बट So आई अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म। and I gave him a higher score than I gave Alha. So ठीक ठीक, हाँ, वो स्केल का भी है ना। आप यूर बीइंग स्ट्रिक्टर देन आई एम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी उस्मान खान के ऊपर। मेरी बारी है। उस्मान खान को I would give him, I don't know, I'll give him a 4 again, probably. Um, Usman Khan का ये था कि इंडिया के खिलाफ was the one game where he did well. He was the only saving grace. उसके अलावा I didn't see a lot of blunders from him. His wicket keeping was fine. कोई ऐसा वरना होता है कि यार जैसा एशिया कप में गूगल से एक ब्लंडर हो गया था. So the fact that we aren't talking about missed stumpings or missed catches, I think he did a decent job over there. But he did not dominate any games. दरमियान में आके उसने एक दो अच्छी इनिंग्स, मतलब decent innings खेली थी, but the one big inning he had was 44 against India. Other than that, nothing to write home about. So I would give him a 4 out of 10. आसिफ, आप बताएं उस्मान के बारे में। So मेरे ख्याल में the keeper's job first and foremost is to keep. I gave him a 5 because, like you said, I racked my brains. I looked at each match. I didn't see a single mistake from him. He wasn't phenomenal, but he made no mistakes. So there was not a single instance where he said, "Yaar, agar koi aur keeper hota, he would have gotten that." So and he actually had a couple of running catches in some of the earlier matches. Bill, I agree again. He scored very well against India. He's the only one who looked comfortable batting against India, and I think that's the reason why he gets credit for that more than his failures are. That's the big stage, and you want players who are unafraid to perform on the big stage, because we had so many players who shrinked away from that spotlight. So because of that, I gave him a 5. Is he the keeper of the future? I don't know, but there wasn't much to criticize about him. One of his zeros was he was run out against USA, on zero. So, I mean, 5 I think is middle of the road. और आई थिंक एक थोड़ा सा मैं अगेन कैप्टनसी को ज्यादा फ्लॉ करूंगा कि जो उसका एक रोल था कि वो मिडिल आपके स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकता था टुवर्ड द डेथ ओवर्स, तो उसको बहुत लेट भेज रहा था। लाइक आप आखिरी गेम में भी देखो, he was sending Shadab ahead of him. He was even he promoted himself ahead of him, Nawaz ahead of him, और आखिरी 2 ओवर्स में तो आई थिंक जब आउट हुआ है आपका क्या कहते हैं फखर, उस वक्त भी आप उसको ट्राई कर सकते थे। चलो उस वक्त नहीं करना तो नाफे के आउट होने के बाद कर सकते थे। तो अ लिटिल बिट आई थिंक ही वाज अंडर यूटिलाइज्ड एज वेल। मुदस्सिर, आप क्या कहोगे? I agree. I will give 5. रीजन ये है कि उसको अंडर यूटिलाइज किया, तो दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। आखिरी गेम में he should have batted 1 down. अब उसको इंडिया के मैच के बाद when he was confident, उसको छेड़ते रहे उसके ऊपर। कभी एक मैच में तो नवाज शादाब दोनों से ऊपर आए, which I disagree. उसकी 100 है यार बंदे की, तो he was mismanaged, so I will give him 5. ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर इज नवाज। आसिफ, आपकी टर्न है। अच्छा, मोहम्मद नवाज के बारे में क्या कहेंगे आप? I gave Nawaz a 2. Yeah, you look his batting. He played 5 full innings. 1, 2, 3, 4, 5. His total runs were 15 at a terrible strike rate. I mean, look, Nawaz, I feel bad because he's someone who did well, came into the team. He was dropped. He performed in domestic, came back into the team. In Palau series, he does great. I can't think of a bigger flop from a batting standpoint, a bigger drop off than we saw with Nawaz. Now, bowling wise, he took 2 wickets against the Netherlands. He took a wicket against USA. 2 against England, 1 against Namibia, 1 against Sri Lanka. So he always chipped in. But, the Nawaz that we've all seen, the Nawaz that really restored balance to our team and made us formidable, was not there. He was a shell of himself. So
Two is what I get, and it's a disappointing two. I hoped and expected better from him. I think he's also this. We've seen enough performances to where in at least ICC tournaments, he's not the guy. I don't think. इस तरह आप अग्री करोगे या कुछ और आपके हैं नंबर्स नवाज के बारे में? मेरे जी जी। आई विल गिव इट हायर क्योंकि उसकी प्राइमरी जो जॉब थी, जो बॉलिंग थी, तो एक्चुअली मेरे ख्याल से उसकी इकोनॉमी अभी भी, आई थिंक ही हैज द बेस्ट इकोनॉमी आउट ऑफ ऑल बॉलर्स समहाउ। वो क्योंकि पहले 4-4 विकेट ले रहा था, तो आई थिंक बॉलिंग में काफी डिसेंट था, बैटिंग में ही फ्लॉप, सो ही कैन गेट इवन, आई विल गिव हिम 5 नवाज। अच्छा, सो मैंने उसको उतने ही दिए हैं जितने मैंने शादाब को दिए हैं, बिकॉज फॉर मी इट वाज हार्ड टू पिक बिटवीन हु वाज द वर्स्ट, बिकॉज अगेन अगर मैं बैटिंग में देखूं तो शादाब हैड अ बेटर टूर्नामेंट, पार्ट ऑफ दैट वाज उसको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिली, उसको ज़रा अर्ली ऑन भेज दिया गया, लेकिन बॉलिंग के अंदर I was much more comfortable when Nawaz was bowling versus when Shadab was occasionally bowling. But again, as Asif was saying, batting was a big disappointment. जो हम expect करते हैं कि यार आखिरी 2-3 overs में आपको एक impetus देगा. Someone like Akshar Patel, the role that he has for India, वो हमारी expectation है. उससे वो, from that expectation, he fell really short. And since I'm giving 4 to Shadab, I'm going to give 4 to Nawaz as well. If we had an all-rounder who batted like Shadab and bowled like Nawaz, we would have been great. Right, Unfortunately, that didn't happen. Rashid Khan, but Nawaz was doing it before the World Cup. World Cup में I don't know. No, yeah, exactly. That's just very disappointing. But ये कि नवाज को जब ऊपर भेजते हैं ना, चौथे वौथे तक जब भी आया वो कर देता है, पता है यार। इससे पिछले वर्ल्ड कप में इमाद के साथ ये एक्सपेक्टेशन थी और वो पीएसएल में उसका अच्छा गया था, लेकिन वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गया। सो आई डोंट नो, जो इस रोल के लिए लाते हैं वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे somehow. Exactly. जो इमाद के innings against India was exactly what Nawaz did against Netherlands, 6 and 13 balls. It was like you could feel the lifeblood draining from the team. Right. अच्छा, नेक्स्ट प्लेयर है हमारा। अच्छा, और टर्न किसकी है बाय द वे? अभी लास्ट किसने फर्स्ट बोला था? I went first with Nawaz. So मुदस्सिर, you can take फहीम अशरफ नेक्स्ट। फहीम अशरफ को मैं तो 7 दूंगा क्योंकि अंडर यूटिलाइज, और उसके बगैर वर्ल्ड कप से वो बाहर हो रहा था पाकिस्तान। इट्स नॉट फहीम फॉल्ट, उसकी अच्छी उसने अपनी नीश बनाया था कि आखिरी 3 ओवर में ही कैन हिट बेटर देन एनीबॉडी एल्स। उससे बॉलिंग ही नहीं कराई, जब डीप बॉल तो पहला ओवर दे दिया, वही ना गार्बेज कैप्टनसी। So it's not राना को मैं 7 दूंगा, अंडर यूटिलाइज। सही। I have I don't know, I was debating between a 6 and a 7, probably 6.5 कर देता हूँ। You are right. I think जो पहली गेम के अंदर अगर वो ना वो छक्के मारता तो हम ऑलमोस्ट उसी वक्त ही आउट हो गए थे। So that was the big sort of highlight and a big contribution from him. You are right. उसको बॉलिंग में ऑलमोस्ट ट्राई नहीं किया पूरा उसमें, बट सो उसमें उसका ज्यादा कसूर नहीं है। बट अगेन अगर मैं देखूं कि यार अगर आप उसको यूटिलाइज कर देते और उसको मार पिट जाती, तो फिर हम लोग कह रहे होते जो शदाब के बारे में कह रहे हैं। सो वी डोंट नो हाउ दैट वुड हैव पैन्ड आउट। टू मी, इफ यू आर प्लेइंग हिम, उसकी जगह तब बनती है कि आप, स्पेशली हमने बहुत सारे ऐसे गेम खेले कि जिसके अंदर एक आपने स्पेशलिस्ट बॉलर खेला और एक फहीम को रखा। जैसे इंडिया के खिलाफ हमने एक सिर्फ शाहीन को रखा था और एक फहीम को रखा था। तो उस रोल के अंदर अगर आप खेल रहे हो तो फिर आपकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि बैटिंग भी उससे नहीं हुई, उसमें बॉलिंग में उसने एक ओवर नहीं करवाया। सो बैटिंग तो क्यों, उसने मैच ही कम खेले ना। इंडिया के खिलाफ खेला था, एंड में जाके वो ड्रॉप हुआ, आखिरी 1-2 के अंदर, सुपर 8 के अंदर वो ड्रॉप हुआ। He played 3 innings. तो एक तो 3 में से एक तो उसने मैच जिता दिया ना। Netherlands, USA, India, Namibia के खिलाफ उसकी बैटिंग नहीं आई। हाँ, एक तो मैच जिता दिया उसने। So are we just going to judge him on those 3 or are we going to look at his उसका फॉल्ट नहीं है ना। देखो, मैं देख रहा हूँ कि वो how he was performing before the World Cup, और वर्ल्ड कप में भी he did his job right away। तो मेरा तो ख्याल है उसकी जगह T20 में बनती है, क्योंकि अगर आप बाहर खेलोगे you can play 2 pacers, you can have him as an extra pacer। तो खराब पिचेस होती हैं। इंडिया वाले मैच में मैंने कहा भी था कि वो 1-2 ओवर करा सकता है, जब स्पिनर पिटे, उसको बॉल नहीं दी, तो he was not utilized। अब एशिया कप में he took 3 wickets against India in the final, including अभिषेक। तो वो अच्छा प्लेयर है, उसको यूज ही नहीं करते लोग सही। अरे अगर तो हम रेट कर रहे हैं कि based on just those 3 innings and not basically looking at his impact on the World Cup as a whole, then I agree with you. I would give him like maybe a 7.5। तो इम्पैक्ट तो आया ना, वो वर्ल्ड कप से टीम तो वापस आ गई। आसिफ, आप क्या कहेंगे? I gave him a 7. Again, 29 runs in 11 balls. He saved our Izzat completely against the Netherlands. The tournament would have been over for us.
But against USA, he didn't score much. India ke khilaf, he didn't score much. He only bowled one match, and that was against Namibia, 2 overs, 0 for 16, which is fine. But again, he saved us. And I think, boy, I agree with Mudassir. He was underutilized. He could have been utilized, especially when you had Khafnak, Shaheen Shah Afridi on the other side. Oh, Some of those overs could have been given to Fahim Ashraf. He yeah, could not have done worse. yeah. ठीक है, चले लास्ट आसिफ आपने किया था या किसने किया? Uh, फहीम मैंने अशरफ किया किसने? मैंने फहीम किया आपने किया है। ठीक है, आपकी बारी है। नेक्स्ट आ जाता है एक बैट्समैन, एक फाइनल एक और बैट्समैन कर लेते हैं एंड देन वी कैन, या चलो बॉलर्स पे आ जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, लेट मी सी, probably give him a 3, I'll give him a 3. I think उसका एक अच्छी इसकी इनिंग हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड वाज द हाईलाइट। और बाकियों के अंदर वो पिटा है एंड देन ही वाज राइटली ड्रॉप्ड लेटर ऑन। जब उसने कम बैक किया उसकी एक डिसेंट इनिंग हुई है अगेंस्ट श्रीलंका के अंदर, ही ऑलमोस्ट कॉस्ट अस द गेम। कभी कभार वो बैटिंग से पूरी कर लेता है लेकिन बैटिंग भी उसकी कोई खास नहीं चली। बट अगेन बेस्ड ऑन हाउ आई बीन रेटिंग अदर पीपल लाइक सलमान आगा को मैं 3.5 और 3 इस रेंज में दे रहा हूँ, उसी रेंज में शाहीन को भी दूंगा। सो आई एम गिविंग हिम अ 3। आसिफ? I gave him a 1. I said if you take out the England match, you'd do -5 because, again, expectations come with Tabi. This is the guy who's been around. He's your veteran. He's supposed to be the guy who leads from the front, who kind of gathers everyone. When the spotlight's on you, he's the one who stands up and shines. I think the England match was an aberration. I don't think that's reflective of where he's really at. And the thing is this, how many times have we seen this? Matthew Wade smacked him for 3 sixes. The Sri Lanka match, there was zero pressure. We knew we were out of the tournament. He didn't have to, he could have just relaxed and still he bowled. He almost gave up 28 runs in the last over. This guy has not learned. He has not learned after all of this time. And this is the spearhead, quote unquote spearhead. And I think it's at a point now his presence is causing nuqsan to not just the team, but the guys who are being kept out who deserve a spot, which I'm going to talk about here when we talk about someone else. Shaheen Afridi, I think, is a very strong negative influence on this team just by his sheer presence. Unfortunately, again, in this on format, current form, right? On current form. I Current mean, form, one has to qualify. I can't remember when he's been in good form in this format. I don't remember when he was, नहीं यार, वो the आपका last जो लास्ट वर्ल्ड कप था और जो वर्ल्ड कप आपका क्या उसे कहते हैं, two World Cups ago when he got injured in the final. That was the last greatness from him I saw. That was 4 हाँ years ago. उसका Yeah. पैच ही है काफी। ओडीआई में बेसिकली ही बोल्ड वेल इन ऑस्ट्रेलिया ओडीआई। एशिया कप में इतना बुरा नहीं था। जो एशिया कप कैंपेन है, बैटिंग भी उसने बेहतर की है और कुछ विकेट्स भी लिए हैं। अभी ये वर्ल्ड कप तो बहुत काफी बुरा गया है टू द एक्सटेंट के उसके जो अपने फैंस हैं वो भी कह रहे थे कि यार इसको टीम में नहीं होना चाहिए। उसका अपना फादर इन लॉ कह रहा था यार हमें तो छोड़ो। वो तो सो इंग्लैंड So, ठीक है। I mean, criticism is clear. I mean, if he has to come back, he has to. He's not a 11 में उस तरह जगह नहीं बनती unless he improves. Next आ जाते हैं अबरार। Mudassir ने scored. Mudassir didn't score. मुदस्सिर, sorry, आप बोले। यार वो अगेन इंग्लैंड के गेम तक तो वो नेगेटिव या जीरो में नेगेटिव में था बल्कि। तो इंग्लैंड में यार वो उसने मैच जिता दिया था बेसिकली 4-1। अगर उसमें अगर हु नोस क्या होता, मगर 1 विकेट चाहिए थी, अब्रार नहीं खेला उस मैच में। तो आई थिंक वो खैर, तो इसलिए मैं 2 या 3 आई विल गिव हिम बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट मैच था। तो आई विल गिव और हिम अगर वो 3। इंग्लैंड का जीत I will जाते give तो him हम 3. सेमीफाइनल में होते बेसिकली। एग्जैक्टली, तो बड़ा मैच था, तो आई विल गिव हिम 3। और वो बिल्कुल नेक एंड नेक हुआ था। सो या ओवरऑल अच्छा, चले नेक्स्ट आ जाए। आई थिंक आपकी टर्न है शायद आसिफ। सो लेट्स टॉक अबाउट अबरार अहमद। Abrar, I gave a 7. He had, again, whenever he was called upon, he bowled very, very well, except he had one terrible, terrible match that was against India, which, to be fair, everyone had a terrible match against India except for Usman Tariq. 2 wickets against Netherlands, 1 against the USA, 0 against India, and then he got dropped. And I don't understand why he got dropped just based on that one performance against Sri Lanka. Honestly, if he wasn't there, we might have lost that match. He bowled 4 was overs, dropped for 3 the New Zealand game as well, जो कि बारिश हो गई थी, वरना उसमें भी drop ही था। Yes. So he took 3 for 23 and 4 overs. Look, he's the reason I took points away was the India match because, again, he's still a little inexperienced, but you do want your best players to perform at the best of their ability when the light is brightest. And he had possibly the worst T20 match I've seen him play.
but that's okay. And look, good players will have bad matches. He just chose the wrong match to, play poorly. And I still give him a 7 because every time he was bowling, he looked like he was going to take a wicket outside of that India match. अच्छा, अबरार को भी फाइन कर रहे हैं वो कि नहीं? अभी रिसेंट वो आई थी कि यार फाइन के अंदर Everybody, यार वो नहीं everybody. नहीं नहीं, वो अभी जो नहीं, मैंने लेटेस्ट पढ़ा है उन्होंने फरहान को एक्सक्यूज कर दिया है, फखर को एक्सक्यूज कर दिया है, सलमान मिर्जा को एक्सक्यूज कर दिया है। अबरार का मुझे नहीं पता। आई थिंक यार वो अबरार अबरार का भी बनता है हाँ वैसे एक्सक्यूज करना। वो that is something we have to talk about. वो Is अभी the कंफर्म नहीं absolute है यार, कुछ भी पता नहीं क्या कर वैसे रहा वो अजीब ही यार, वो जो किया It is वैसे the ये। most ridiculous thing I've ever seen, and है। no sport has ever done क्या this before. It's वो ridiculous. मुझे We have become the फ्रैंकली laughing stock of the cricket हाँ world पता नहीं वो होगा basically. भी नहीं होगा, नोबडी नोज। I mean हाँ तो अजीब ही मैं यार। अबरार का हाँ मेरे हम्म, तुम्हारे हाँ बोले। तो या मैं आई एग्री विद आसिफ भाई कि इंडिया गेम की वजह से थोड़े काटने पड़ेंगे पॉइंट्स, तो 7 फ्रॉम माय साइड। नहीं, मैं भी एग्री करता हूँ 7। आई विश के वो हमारा जो लास्ट गेम के अंदर थोड़े से शायद रन और होते और ड्यू का इतना फैक्टर ना होता, तो वो अपनी तरफ से वो तो अपना काम कर दिया था उसने। हाँ जो फॉलो अप, जो बैकअप बॉलर्स थे, उस्मान तारिक डिडंट हैव अ गुड गेम, अदर्स डिडंट हैव अ गुड गेम, वरना वो भी ऑलमोस्ट उसने जिस तरह से ना जो गेम बना ली थी ऑलमोस्ट हमारे लिए। सो आई हैव 7 out of 10 फॉर हिम एज वेल। नेक्स्ट वी हैव द अदर स्पिनर उस्मान तारिक। मुदस्सिर, आप कितने देंगे उस्मान तारिक को? उस्मान तारिक को आई विल गिव 8। उसका अगर आखिरी मैच अगर जिता देता तो फिर तो 9-10 ही हो जाता, तो 8 इज फाइन। अच्छा, आई हैव 7.5। अबरार को मैंने 7 दिया, इसको 7.5 किया। आई थिंक टू बी फेयर ऑलमोस्ट करीब और करीब ही इक्वल है। या इक्वल। आई थिंक टू मी जो उसकी एक मिस्ट्री एलिमेंट थी ना वो, कि भी वो शुरू में वो ऐसा लगता था कि यार शुरू के एटलीस्ट जो गेम्स के अंदर एक हाँ हवा बनाया हुआ था टीम या बाकियों प्लेयर्स ने ना, और वो उसको दे वर ट्राइंग टू प्ले हिम आउट, और वो जब बाद में लेकर आते थे दे वर ट्राइंग टू हिट हिम, और उसमें दे वर एंडिंग अप गिविंग हिम विकेट्स। नमीबिया के अगेंस्ट, अगेन नमीबिया आप कह सकते हो, लेकिन जो नमीबिया के अगेंस्ट उसने बॉलिंग की ऑलमोस्ट अनप्लेएबल था वो। Um, आखिरी गेम के अंदर ही हैड अ रियली बैड गेम टू बी फेयर, श्रीलंका के अगेंस्ट। आई विश कि अगर उस वो वाला उस्मान तारिक परफॉर्मेंस देता, और तो हमें 8 ओवर उस तरह के मिल जाते, एक तरफ से अबरार लगा होता, एक तरफ उस्मान तारिक लगा होता, तो उस वजह से आई मीन आई डोंट नो, या 7 या 7.5। या फॉर मी ही इज ऑलमोस्ट एट पार विद अबरार टू बी फेयर इन द होल आखिरी गेम में वो ड्यू से ही प्रॉब्लम हो रही थी उसको, ड्यू से। बट बहुत अगेन स्लिप हो अबरार, रही थी। हाँ, अबरार के जो ओवर्स भी थोड़े से पहले करवा लिए हाँ थे, इसके थोड़े बाद ही आए, एग्जैक्टली, मे बी दैट वाज द रीजन। तो ड्यू ड्यू का भी चक्कर बट बैटिंग बेचारे को बिल्कुल नहीं आती। वो नहीं। हमने देखा फील्डिंग था इंडिया के फील्डिंग भी खिलाफ। खराब है यार, फील्डिंग भी फील्डिंग ठीक। जो कैच छोड़ा था उसने, वो शुक्र है हमें उसका इतना कॉस्ट नहीं हुआ। फील्डिंग बहुत ही बुरी है। स्टाइल बंदे का बहुत है। आई लाइक हिज सेलिब्रेशन, वो यूं करके करता है। बट एंड मच टू लाइक अबाउट, आई या होप दे परसिस्ट विद हिम। आई थिंक उसको अभी या भी इट्स टू अर्ली टू से कि यार पीपल हैव फाउंड आउट व्हाट ही इज। जस्ट वन बैड गेम डजंट वो चीज, तो उसको खिलाना चाहिए। आसिफ, आपने कितने नंबर दिए हैं? I gave him an 8. So I did the same thing, just drop look. I think the same thing as Abrar. He was very good. He had one bad match. The reason why I gave him 1 point more than Abrar is because he's much more inexperienced. And we could have easily seen him unravel at this high level of the World Cup. Again, I look at the India match as my barometer for how you perform under pressure. He took 1 wicket for 24 in 4 overs. He was great. Yeah. England ke khilaf, 31 runs, 2 wickets. Yeah. So it was really the only blemish, because the lower matches, TK, USA, Namibia, fine, but the only blemish was Sri Lanka, and you're allowed one blemish, I guess, at this level. It was a bad time, and due as a factor, like you guys said. So I think he has a good future. Hopefully, he stays. And there was zero controversy about his action. That's the other thing. या वही मैं बात कर रहा था। एक चीज उसको थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा, कि लीडिंग अप टू द इंडिया गेम, स्पेशली इंडियन मीडिया के अंदर बहुत न्यूज चलनी शुरू हो गई थी कि यार उसका जी वट्टा करवाता है। एंड सो आई एम श्योर बंदे के माइंड के ऊपर भी स्टार्ट्स प्लेइंग, राइट, कि यार ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। So he didn't let it affect his bowling, and the opposition were giving him respect. India के game के अंदर भी they were trying to play out his overs, and India plays spin very well. So if India is showing him respect, that shows कि उनको पता है कि यार this is a dangerous guy. So overall, I mean, good prospect, and I hope उसको आप persist करें, और जहां तक कोशिश हो सकती है दोनों को खिलाएं, अबरार और उसको, unless के यार आपकी बिल्कुल सीमिंग विकेट है। अगर स्पिन का अमल दखल है तो स्पिन के अंदर आप एक ऑलराउंडर को कम कर सकते हो। खैर वो एक नेक्स्ट डिस्कशन हो जाएगा कि हमारी 11 क्या बनती है, बट वी हैव टू मेनी ऑलराउंडर्स। आप ऑलराउंडर्स में से कुछ कम करके स्पेशलिस्ट बॉलर्स दोनों को खिला सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम, बारी किसकी है बाय द वे?
I did Yeah, Usman Tariq उस time मेरी है। तुम्हारी अच्छा मेरी है। हाँ सलमान मिर्जा का कर लेते हैं। So Salman Mirza is a tough one because he didn't have too many games. I have him like around 6. आई थिंक जो उसने एक दो गेम्स खेली हैं उसमें अच्छी कंट्रीब्यूशन उसने दिया है। जो शुरू की गेम थी अगेंस्ट नेदरलैंड ही वाज एक्चुअली बॉलिंग मच बेटर देन शाहीन। एक और जो गेम है उसने कौन नामीबिया। सी नमीबिया वाली गेम के अंदर भी ही वाज बेटर। देन ही वाज ड्रॉप्ड। एक गेम उसकी बुरी गई है अगेंस्ट इंग्लैंड एंड यू नो दैट वाज सम कुड आर्ग्यू दैट वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। इंग्लैंड के अंदर ही वाज यू नो ही काइंड ऑफ अंडर परफॉर्म्ड and the rest he wasn't tried much. I mean, Shaheen made a comeback and then Shaheen was playing, so I can't fault him much. I Yeah. still like the change of pace that he was bringing, the cutters, the change of pace, but you know, no breakthrough performance apart from you know Netherlands के against ही you know शाहीन को बहुत मार पिट रही थी अगर आपको याद हो against Netherlands, so Salman kind of balanced that, so I gave him a 6. आसिफ आपके पास आप कितने नंबर देंगे? I gave him an 8.5. Look, I Okay. think he is the guy who needs to replace Shaheen Shah Afridi. You know, he only bowled in 3 matches. England ke khilaf he bowled 3.1 overs, 0 for 26. So not horrible, not great, but not horrible. Like you said, change of pace. He's more of the modern day T20 cricketer. He's not formulaic. He changes, he adjusts, he adapts, he sees what's going on. And this is the kind of guy who normally takes wickets and keeps it economical. I think you know, when you're talking about our bowling lineup, whether it's the beginning, whether it's at the death, Salman Mirza has to be in your 11. He's almost, for me now, an automatic selection in our T20 team. You know, and this is when I say Nuksanwa, the presence of Shaheen Shah Afridi hurt us because we had less Salman Mirza. तो इंग्लैंड के खिलाफ जो था वो it was more of a blemish you would say, it was one off Yeah, case. I mean, he didn't get any wickets, but 3 overs for 26, 3.1 overs for 26 is not horrible. I mean, he gave 8 runs and over. Look at Shaheen Shah Afridi's, you know, he gave up against USA 42 runs, against Netherlands right. 40 something runs, two overs for 31 runs against India, and then 48 runs against Sri Lanka. It's miles apart, miles apart. वो सही So आप कह रहे हो, लेकिन अगेंस्ट सीना कंट्रीज एंड अगेंस्ट लाइक इंग्लैंड वाज yeah, अ बिग गेम राइट, तो उसके अंदर अगेन but it सैंपल wasn't साइज इज टू horrible. स्मॉल, या नो सैंपल साइज, हाँ, बट अगेन वही Yeah, सैंपल साइज इज टू स्मॉल, सम कुड से कि Yeah. यार, बट यू राइट, आई मीन आई कुड गिव हिम अ लिटिल बिट हायर एज वेल। मेरे लिए बिकॉज ही प्लेड टू फ्यू अ गेम, सो उसके अंदर yeah, मैं उसको it's ज्यादा hard. नहीं It's देना चाहिए। hard. इट्स हार्ड टू Yeah. बेसिकली से के versus people who have actually consistently, like Farhan के अंदर we all agree he played all the games and he did well in Yeah. almost all the games. मुदस्सिर आपने कितने दिए हैं? Yeah, I will give him 7. Okay. के potential है, ठीक है, मतलब he needs to be in the team. ठीक है। अच्छा, हमारे मेरे ख्याल 2 प्लेयर्स रह गए हैं नेक्स्ट 3. ऑन द 3 रह गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हाँ. हैव नसीम शाह, एक गेम खेली है एंड में। Again. आसिफ? Oh, Maria. This is unfair because it's one match, but I gave him a 4. He scored 1 run off 1 ball in 4 overs. He was 1 for 36. You know, conditions were seeming a little bit. He could have made a difference. He wasn't horrible. He wasn't great. He was just fine. And Naseem Shah, again, I hold him in high regard. He's done so much for us. I was hoping that he'd have a breakthrough thing, but it's also unfair because एक match, you know, Johnny, it's hard to base that, but just based on that one match, I think he was a 4 out of 10. मुदस्सिर आप एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? बिग विकेट निशान का आउट किया था उसने, Yeah, so he can, I don't know, 8 game. yeah, I can give him 6, so it's okay. that's fine. Yeah, चलो मैं आधा कर लेता हूँ ना, आपकी मैं 5 दे देता हूँ। अगर वही जो परफॉर्मेंस उसने श्रीलंका की दी थी उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लूं तो फिर तो थोड़े से अच्छे ही मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज वो गेम अच्छी थी उसकी। लेकिन वही है कि द एविडेंस इज सो लिटिल कि हम उसको अब क्या आप करें, तो 4 दे दो, 5 दे दो, बहुत लीनियंट होना है तो मुदस्सिर की तरह, सो आई एम लीनिंग टुवर्ड्स 5। नेक्स्ट है जी मुदस्सिर, आप बात करना चाहेंगे फखर जमान की। फकर को यार मिसमैनेज किया है, फिर वही मैं तो खैर, मैं और आसिफ भाई तो हम कब से, मैं सुपर 8 जब शुरू, हमारे तो वीडियो में है यार, जब सुपर 8 शुरू हो रहा था, पहले सुपर 8 के पहले गेम से पहले कहा था कि भाई इसको ओपन करा दो, साइम को 1 डाउन कर दो, नीचे कर दो। तो मगर इसने वो रैकेट पार्टनरशिप, उसने वर्ल्ड रैकेट फिर इस एज में तोड़ रहा है वो दोबारा, और एक मैच खेला। आई विल गिव हिम 7। ज्यादा दो मैच होती, सो आई विल गिव हिम 7। अच्छा, आई हैव 8 अगेन, ज्यादा इसलिए नहीं,
इसलिए ज्यादा नहीं दिए क्योंकि 2 गेम्स हैं, 2 प्रॉब्ली, एक खेला है वो अगेंस्ट व्हाट इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, और एक England and Sri Lanka. England and Sri श्रीलंका। Lanka. सो इंग्लैंड वाला भी डिसेंट था, आई मीन मिडिल ओवर के अंदर इट वाज अ डिसेंट नॉक। और दूसरा के अंदर, एंड जो हमने पहले थोड़ा सा मैंने क्रिटिसाइज किया है ना फरहान को, वो चीज मुझे फखर में नजर नहीं आई। फखर डजंट प्ले फॉर हिज माइलस्टोन्स। वो जब 84 पे भी था, ही कुड हैव टेकन अ फ्यू बॉल्स एंड गॉटन टू हिज तभी नहीं 100, किया उसने। बट उसने कहा नहीं यार, आउट होता तो आउट हो, वो उसने खेली, वो बोल्ड हो गया वो। सो फॉर हिज सेल्फलेसनेस, एंड अगेन ज्यादा मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 2 गेम्स हैं, गेम तो है ना। एक स्मॉल सैंपल के बेसिस के ऊपर आप इतने ज्यादा नंबर देना भी थोड़ा सा वो लगता है। आई विश वी हैड सीन मोर ऑफ हिम, आई एग्री। उसको आप शुरू में ट्राई कर सकते थे, बट या दैट्स व्हाट आई हैव। आसिफ, आप कितने देंगे? So look, I have no obviously inherent biases for our future captain, but I have a 10. I mean, look, देखो, 2 matches है ना, England, Sri Lanka. So these are not minnows. So आपने England के फ्रांस से खिलाफ, ज्यादा दिया है इसको, ये हाँ, बेसिकली हाँ, yes, yes. Because look, England के खिलाफ he scored 25 and 16 balls. All या right. तो मैं Sri भी Lanka के खिलाफ, Sri मैं भी Lanka के बड़ा खिलाफ हूँ। 84 and 42 balls. All we have to judge is these 2 matches, and in these 2 matches, he was a revelation. Look, I will say this, and you've all heard me say, okay, I love Fakhar, but I think his time is coming to an end. Maybe he needs to retire. But yeah, when he was called upon with 0 match practice, he came in and he not only rose to the occasion, he did it and then some. He far exceeded the expectations of even his most ardent fans. So to और come उसका in नंबर and चेंज play, करते जा रहे हो, नंबर कभी आप 5 पे डाल yes, देते हो, कभी 1 उसके पे साथ डाल आप देते पंगा हो। कर रहे हो, आप जाती है ऊपर डाल यार, रहे हो, आप नीचे डाल रहे बहुत हो, जाती है। इतनी जाती है। And बंदा शरीफ वाली तरीके से, he doesn't complain, he just goes and says, ऐसे के तैसे I'm going to hit. That's the kind of player I want. 11 fuckers on the team will win the World Cup. So give me 10 out of 10. यार, और मैं भी चेंज कर रहा हूँ यार। मैं भूल गया इंग्लैंड में भी 2 मैच। आई विल गो विद 8। चलो, There मैंने भी you 8 go. ही दिए थे, तो मैं यार, लेकिन फरहान से तो कम बनता है। फरहान ने हाँ, 5 फरहान से सारी वो थोड़ा कंसिस्टेंसी ज्यादा हो थी। गया है। वो जो है ना, No, आसिफ का no, प्यार जो है वो जाग उठा है मेरा ख्याल है। जो एक partnership उनके साथ थी ना, who is the better batsman? Who is the better batsman in that partnership? Come हाँ, on. it was फखर, आई वुड से। Yeah, he batted at 200 strike rate. या यार एंड अगेन ही वाज नॉट सेल्फलेस, उसने अपनी विकेट दे दी, वो No, 80s selfish, के अंदर yeah, जाके yeah. स्लो नहीं हुआ वो। अगर बट मजाक ये है नहीं कि हो गया कि हम्म, अब हर टूर्नामेंट शुरू करते हैं तो फखर टीम से बाहर होता है। जब हम्म, 3 मैच हारे आते हैं, फिर फखर आता है, फिर पूरी दुनिया कहती है फखर क्यों नहीं खिलाया था। अजीब याद है, how many times we have seen But this? वही बात है, he has a track record of rising to the occasion in the big matches. Yeah. That's always. So, you know, हम्म। yeah. अच्छा, आखिरी है मेरा ख्याल है, मेरी बारी है आई थिंक। Maybe आपकी है? ओके, यू कैन टेक no, ख्वाजा नाफे, गो विद not ताहा। much of it. यार 2 मैच Again, he just had 2 matches. I'm या giving him a 4, but I हम्म, think that's a देखो little ना, harsh. He scored 5 and 5 against Namibia, 2 and 3 against England, but you need context because in both of those innings he came in at a time when we were accelerating. So I give him credit. He was not batting for himself. He was just trying to accelerate for the team. But at the end of the day, the results are what they are. By no means do I think he should be discarded. He's someone for the future. Keep him. But just based on the results alone, that's all we can judge him by. I'd give him a 4. या एंड आई थिंक वो जो हम एक हमारी स्टबर्ननेस थी ना कि यार बाबर को ही रखना है 4 के अंदर, Yeah. आई Yeah. थिंक वो अगर शुरू से अगर आप कर देते तो हमें थोड़ा सा और भी देखने का मिल जाता कि हाउ इज ही इन दैट बिल्कुल. रोल। हमें 4 Yeah. के अंदर वो बंदा चाहिए जो हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी दे दे अगर चाहे हो, विच इज रिलेटिवली रेयर। ज्यादातर ये होता Yeah. है कि उसमें फिर आपको एक्सलेट करना होता है, तो Yeah. अनफॉर्चुनेटली ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। और वो 2 इनिंग्स मिली अगेंस्ट नमीबिया, अगेन यू कांट फॉल्ट हिम बिकॉज वो 12 ओवर के बाद वो आया और उस वक्त तो फिर उसने मारना ही था। और Mhm. आखिरी के अंदर अगेन वो आखिरी 4 ओवर So, रह गए थे, तो हाँ. आई वुड प्रॉब्ली गिव हिम अ 4 एज वेल। मुदस्सिर, Mhm. आपके कितने थे? या 4 4। Okay. चलें जी, मेरा ख्याल है ये हमारी रेटिंग्स हो गई। मोरलेस हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, अगेन कुछ स्केल का फर्क है, कुछ अगेन द स्टैंड आउट परफॉर्मर्स जो हम सब ने एग्री किया है, फरहान ऑब्वियसली, फखर जमान, अबरार, उस्मान तारिक, ये And 4 Salman हैं हमारे, Mirza for me. एंड सलमान मिर्जा उसके बाद। आई थिंक ये जो फाइन की बात, कम से कम यार इसकी तो जान छोड़ दो, बेचारों ने यार बुरा हाँ, नहीं किया, हाँ. बाकियों को फाइन लगाओ बेशक। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं ज्यादा लगा, उनको लगा दो, शाहीन को ज्यादा लगा दो, शादाब को ज्यादा लगा लो, बिकॉज सीनियर से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती हैं आपकी। आगा बाबर. साहब को लगा दो भाई, वो कैप्टन थे। हाँ, बाबर को भी. Yeah. नहीं वैसे, बट इन ऑल फेयरनेस यार, ये फाइन वाली बात बनती नहीं है, नहीं कुछ नहीं अजीब सी नहीं, बात पता है नहीं होगा भी नहीं होगा, ऐसा हाँ होता नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है अपने आप से ना वो टेंशन हटाने वाली चीज है।
चलें जी, होपफुली आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। एक नए एपिसोड में हम एक ओवरऑल रिव्यू भी कर लेंगे वर्ल्ड कप के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। बट अपनी राय दीजिएगा कि आपकी क्या रेटिंग थी, डिड यू एग्री विद अस? If yes, why? If not, why? And if you haven't subscribed to our channel, please do that, because again, we had to change our channel and we lost some subscribers. So hopefully you liked our episode and hopefully you'll consider subscribing. Thank you very much. Pakistan Zindabad. जिंदाबाद।